ملنا چاہتا ہوں، دیکھے ہوئے عرصہ ہو گیا۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ میں پاکستان اگلے ماہ کی اس تاریخ کو آ رہا ہوں۔ تو جب میں پاکستان پہنچا تو میں نے آتے ہی بھائی کو فون کیا اور میں نے کہا ہم ایک مقدس محفل میں ملتے ہیں اور آپ اس مقدس محفل میں خوشخبری کا کلام لے کر آئیں۔ ہم مسیح کے جنم دن کے لیے اس محفل کو سجانے جا رہے ہیں اور آپ اس کو اور خوبصورت اس کے کلام سے بنائیں۔ اور میں نے ان کو جب دعوت دی، انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا، تو میں آپ کی بہت ساری تالیوں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کی بہت ساری تالیوں میں اسٹیج پر خدا کا کلام لے کر تشریف لاتے ہیں پاسٹر جمشید ہدایت۔ بہت ساری تالیاں، آئیے سب کھڑے ہو جائیں اور خدا کی تعظیم میں اور خدا کے جلال کے لیے بہت ساری تالیاں بجائیں۔ جنہوں نے کبھی تالی نہیں بجائی وہ بھی ابھی تک مجھے آواز تالیوں کی نہیں آئی۔ زوردار تالیاں خدا کے کلام کے لیے بجائیے۔ یہ جو ٹھنڈ نے آپ کو پکڑا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں ہم اس ٹھنڈ کے شیطان کا سردبا زوردار تالیاں بجائیے، زوردار تالیاں۔ آئیے مل کر بابا دے بلند ایک نعرہ لگاتے ہیں، سامنے تک آئیے، ہاللویا ہاللویا، پریز گاڈ۔ تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے قادر مطلق نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے بولیں ہاللویا، پھر بولیں گے ہاللویا۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اس خالق حقیقی کا جس کے سبب سے ہم سب جہاں پر جمع ہیں، اور اس کے بعد پاسٹر غفار صاحب کا جنہوں نے یہ خوبصورت پروگرام جو ہے وہ ارینج کیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے واجب جانا کہ میں آج آپ سب کے درمیان میں آؤں اور خداوند کے زندہ پاک کلام کو رکھوں، اور اس کے بعد ان کی ساری کلیسیا کا، ان کی ساری مینجمنٹ کا، اور جتنے حاضرین یہاں پر بیٹھے ہیں آپ سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ سب سننے کے لیے تیار ہیں۔ آمین، سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھوں کو ذرا کھڑا کیجئے، اوپر کیجئے، لہرائیے، پریز دی لارڈ۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے میں کلام مقدس کی طرف آگے بڑھوں گا۔ وہ یہ بھی بات کلام مقدس میں سے ہے، مگر کلام مقدس کی غیرت کے تعلق سے بات کروں گا۔ اگر آپ کو معلوم ہو جتنے لوگ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کتاب مقدس میں عزرا کی ایک کتاب ہے جو عزرا کے نام سے منسوب ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ عزرا کاہن بنی اسرائیل کا نمائندہ، خدا کی طرف سے مخصوص کیا ہوا شخص، بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، اور وہ کلام کرنے سے پہلے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی ساری قوم ایک کھلے میدان میں جمع تھی، اور وہاں پر ذکر ہے بوڑھوں کا، بچوں کا، جوانوں کا، ماں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، بیویوں کا، یعنی ہر عمر کا فرد، ہر قسم کا شخص بنی اسرائیل کی قوم سے وہاں پر جمع تھا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ عزرا نے کتاب مقدس کو کھولا اور ساری جماعت کھڑی ہو گئی، اور جب اس نے کتاب مقدس کو پڑھنا شروع کیا تو جو وہ کتاب مقدس
اپنے بچوں پر، اپنے گھروں میں، اپنے عزیزوں کے دھیان میں اور مختلف اطوار سے اپنی توجہ کو کھو بیٹھتے ہیں، جس کے سبب سے آج وہ برکتیں نہیں ہیں جو بنی اسرائیل پر ہوتی تھی۔ گو ہم فضل کے دور کے لوگ ہیں، مگر کلام مقدس کی غیرت اور تعظیم کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے کان کھلے رہے، ہماری آنکھیں کھلی رہے، ہمارا دل، بدن، روح، جان ہمیشہ تیار رہے کہ ہم خدا کے کلام کے لیے ہر صورت کوشش کرتے رہیں گے کہ سنیں۔ اس لیے التماس ہے کہ جتنے یسوع مسیح کا نام لینے والے ہیں وہ اپنی جگہوں سے اٹھیں گے نہیں۔ آمین، سنیں گے، سننا چاہتے ہیں؟ آواز کم آ رہی ہے۔ سینٹ میریز کی کلیسیا سننا چاہتی ہے کلام؟ آمین۔ آئیے پھر میرے ساتھ دیکھیے کلسیوں کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب 15ویں، 16ویں اور 17ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ کلسیوں کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں، 16ویں اور 17ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ کلام حق کا پڑھنا شروع کرتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام میں، اور سب کہیں آمین۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے معلوم اور ہے، تمام مخلوقات سے پہلے معلوم ہے۔ پالوس رسول کلسیوں کی کلیسیا اور باشمول آج کی تمام تر کلیسیاؤں سے مخاطب ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ وہ یعنی یسوع مسیح تمام مخلوقات سے پہلے معلوم، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے معلوم، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، کیونکہ اسی میں یعنی یسوع مسیح میں سبھی چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، وہ چیزیں جو آسمان کی ہے یا زمین کی ہیں، دیکھی ہوں یا اندیکھی، دیکھی چیزیں ہیں یا اندیکھی چیزیں ہیں، تخت ہوں یا ریاستیں، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے سب چیزیں یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا اور ہوئی یسوع ہیں، کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، اور یسوع مسیح سب چیزوں سے پہلے ہے، اسی میں سب چیزیں قائم اور رہتی ہیں، یسوع میں ہی سب چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، اور یعنی یسوع مسیح بدن وہی کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پہلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے، کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے۔ آمین جی۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے سر کو جھکائیے، آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے سر کو جھکائیے اور خدا ان سے کہیے خدا مجھ سے بول کلام کر۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اب باپ تیار ہوں کہ میرے خدا جو کچھ تو چاہتا ہے وہ تیرے لوگوں کے درمیان میں رکھا جائے۔ آسمانی باپ اپنا فضل کر، سننے والے کان، سمجھنے والا دل اور دماغ عطا کر میرے خدا، فضل کر، یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ آج کا ہمارا مضمون ہے خدا کو دیکھنے کی خواہش، خدا کو دیکھنے کی خواہش۔ پالوس رسول نے کلسیوں اور باشمول آج کی سینٹ میریز کی کلیسیا کو مخاطب کر کے کہا ہے اور بتایا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت یعنی یسوع مسیح کے تعلق سے وہ بیان کرتا
शख्सियत है, जो एक ना नजर आने वाला शख्स है, उसके ताल्लुक से वो कहता है हम सभी ईमान रखते हैं कि खुदा दुनिया में मौजूद है। मुख्तलिफ अदयान का ईमान है, मुख्तलिफ अदयान के लोग इस बात पर इत्तेकाद रखते हैं कि खुदा दुनिया में मौजूद है, उसने कायनात को पैदा किया है। पालूस उस अनदेखे खुदा की बात कर रहे हैं। पालूस कहता है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत, यानी यीशु मसीह के ताल्लुक से कहता है कि यीशु मसीह वो खुदा जो कायनात में दिखाई नहीं देता, वो खुदा जिसे लोग अनदेखा कहते हैं, वो खुदा जिसे लोग अनदेखा खुदा जान के मानते हैं, उस खुदा को जाहिर करने वाला यीशु मसीह है। वो कहता है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। यानी इससे पहले कि आसमान पैदा किया गया, इससे पहले कि जमीन पैदा की गई, इससे पहले कि कहकशां पैदा किए गए, इससे पहले कि पानी पैदा किए गए, इससे पहले कि जमीन के नीचे की मखलूकात पैदा की गई, इससे पहले कि कायनात को कोई भी चीज क्यों ना पैदा की गई, यीशु मसीह सबसे पहले। हालेलुया, तालियां। यीशु मसीह सबसे पहले। लिखा कि आसमान की हो या जमीन की, देखी चीजें हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें, हुकूमतें हो या इख्तियारात, सभी चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा की गई हैं। यानी कायनात की कोई भी चीज क्यों ना हो, वो सब की सब उसके वसीला से और उसी के वास्ते है। कोई चीज मेरे वास्ते नहीं है, कोई चीज आपके वास्ते नहीं है, आसमान आपके लिए नहीं है, जमीन आपके लिए नहीं है, मगर यीशु मसीह में होकर ये सारी की सारी चीजें जब उसकी है, उसके वसीला से है, उसके वास्ते है, तो हमारी है। वो सब चीजों से पहले और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। किसमें सब चीजें कायम है? बोलिए किसमें सब चीजें कायम है? यीशु मसीह में, किसी नबी में नहीं, किसी और रसूल में नहीं, किसी और खुदा में नहीं, बल्कि कायनात की सारी चीजें उसी यीशु मसीह में कायम है। आमीन, हालेलुया। हम उस यीशु को मानते हैं जिसने सब चीजों को पैदा किया है। हम उसे मानते हैं जो कायनात का खालिक है। हम उसे मानते हैं जिसमें सब चीजें कायम हैं, जिसने आसमान को पैदा किया है, जिसने जमीन को पैदा किया है, जिसने कहकशां को पैदा किया है, जिसने पानियों की सतह पर इस जमीन को कायम किया है, जिसने हर एक चीज को जन्म दिया, जिसने आदम को पैदा किया, जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने आपको जन्म दिया, हम उसे मानते हैं। हम उसे मानते हैं। हम उसे महज नबी नहीं कहते, हम कहते हैं कि वो खालिक है। आमीन। हम कहते हैं कि वो मालिक है, वो हमारा खुदा है। अगर कोई खुदा को देखना चाहता है, अगर कोई खुदा का ताकुब करना चाहता है, अगर खुदा की तलाश है किसी को, अगर खुदा की किसी को जुस्तजू है, तो पहाड़ों पर ना जाइए, वादियों में ना जाइए, मैदानों में ना जाइए, पानियों में ना उतरे, आग पर ना चले, आपको एक ही शख्स खुदा तक ले जाएगा और वो यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह है जो खुदा तक लेकर जाएगा। दुनिया के अदयान खुदा की तलाश में है, मगर हम यीशु की तलाश में, क्योंकि हम जानते हैं कि बाप तक जाने का एक ही रास्ता है और वो यीशु मसीह है। आमीन, आमीन। कितने लोग हैं जो यीशु को देखने की ख्वाहिश करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे। हाथ नीचा कीजिए जरा, माइक कीजिए जरा। हम सब ने हाथ खड़ा किया कि हम यीशु को देखने की ख्वाहिश करते हैं। एक मतलब फिर ईमान का इजहार कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे। ये नेक ख्वाहिश है, ये एक अच्छी ख्वाहिश है जो कलीसिया के पास होनी चाहिए। इस ख्वाहिश के लिए मैं क्या करता हूं?
अगर आपके दिल के अंदर किसी चीज को देखने की जुस्तजू है तो आप क्या करेंगे? तलाश करेंगे। उसे क्या करेंगे? उसे क्या करेंगे? उसे तलाश करेंगे। खुदा को देखने तो लोग रियाजतें करते हैं, लोग चिल्ले काटते हैं, लोग पानियों की सतह पर बैठते हैं, लोग आग पर चलते हैं और खुदा की तलाश कर रहे हैं। मगर याद रखिए, खुदा तक जाने के लिए वो है एक ही रास्ता है और वो यीशु मसीह है, जिसके वसीला से, जिसके जरिया से, जिसके वास्ते सारी कायनात खलक की गई है, जिसने सबको पैदा किया है, जिसने सब कुछ खलक किया है। याद रखिए, उसे देखने के लिए अगर बशर की ख्वाहिश उसे देखना है तो खुदा की ख्वाहिश भी ये है कि अपने आप को जाहिर करे। बशर उसे देखना चाहता है, खुदा खुद को दिखाना चाहता है। बशर चाहता है कि उसे देखे, खुदा चाहता है कि बशर को देखे। मेरी बात समझ रहे हैं? हम सब ईमानदार इस बात का इजहार करते हैं कि हम खुदा को देखना चाहते हैं। तो सिंपल सा रास्ता है कि यीशु के पास आ जाए। किसके पास आ जाए? किसके पास आ जाए? यीशु के पास आ जाए तो हम खुदा को देख लेंगे। आमीन। क्योंकि हमारा ईमान है कि यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल, ये हमारा मसीही ईमान का एक हिस्सा है। ये हमारे ईमान का एक हिस्सा कि यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है। कलीसिया के अंदर यीशु मसीह को देखने की जुस्तजू है वो खत्म हो चुकी है। हम ऐलान करते हैं, हम हाथ लहराते हैं कि यीशु मसीह तुझे देखना चाहते हैं। अगर पादरी पूछे तो हाथ लहराया जाता है, अगर कुरानमा पूछे तो हाथ लहराया जाता है, अगर तौबा के लिए कहा जाए तो खड़े हो जाते हैं। मगर क्या कभी किसी ने ईमान से, पूरे दिल से, सिदक दिल से उसकी तलाश की है? बहुत कम लोग। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। हम यीशु को देखना चाहते हैं। हम में से 20 लोग ऐसे हैं जिनके दिलों के अंदर बहुत सी ऐसी दबी हुई ख्वाहिशात हैं कि वो यीशु को तो नहीं देखना चाहते, मगर और दुनिया की बहुत सी चीजें जो देखना चाहते हैं। मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा, भाई मैं लंदन देखना चाहता हूं, देखूंगा तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। कोई कहता मैं दुनिया के 7 अजूबे देखना चाहता हूं, कोई कहता मैं पेरिस की खूबसूरती देखना चाहता हूं, कोई कुछ देखना चाहता है, कोई सेलिब्रिटीज को देखना चाहता है, कोई वुज़रा को देखना चाहता है, कोई बड़े बड़े लोगों को देखना चाहता है। हर एक शख्स के अंदर किसी ना किसी को देखने की ख्वाहिश और जुस्तजू मौजूद है और उसके लिए वो भाग दौड़ करता है, उसके लिए वो कोशिशें करता है, उसके लिए वो तलाश करता है, उसके लिए वो जुस्तजू करता है। मैं जानता हूँ आज से तकरीबन 13 साल पहले मैं एक दुकान चलाता था, उस पर दुकान में मैं बैठता था और मेरे वालिद साहब ने वो शुरू की थी। दुकान के बाहर मैं बेंच रख के बैठा। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि मैंने एक नौजवान को देखा, वो बड़ा खूबसूरत, वो बड़ा लंबा था, बड़े उसके खूबसूरत घुंघराले काले स्याह बाल थे, बड़ा सेहतमंद था और उसने बड़ा खूबसूरत सफेद लिबास पहना हुआ था। उसने सफेद पैंट और सफेद शर्ट पहनी हुई थी और मैं बैठा उस शख्स की तरफ देख रहा था। वो मेरे करीब से होकर गुजर गया और मैंने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और मैं मुतासिर हुआ। मैंने कहा कितना खूबसूरत शख्स है ये। और फिर अचानक मैंने उसके पांव की तरफ देखा तो उसके पांव में जूता नहीं था। मैं एकदम हैरान रह गया
मैंने देखा वो उसी तरह खुश लिबास, उसी तरह खूबसूरत दिखाई दे रहा था, मगर कल की मुझे बात याद आई और फिर अचानक मैंने उसके पाँव की तरफ देखा और वो फिर नंगा था। एक दफा फिर मुझे झटका लगा, मैंने कहा ये क्या बात है, ये इस कदर खूबसूरत शख्स, इस कदर इम्प्रेसिव शख्स है, इसका लिबास खुशगुन है, ये खूबसूरत दिखाई देता है, मगर पाँव में इसके जूता नहीं है। मुझ में जुर्रत ना हुई कि मैं इससे पूछूं कि भाई ये क्या है। वो चला गया, तीसरा दिन फिर आया, फिर मैंने देखा कि वो उस बाजार में से गुजर रहा है और वही सूरत हाल है। फिर मैंने पाँव देखे, वो पाँव से नंगा था। ये सिलसिला चला। एक दिन मैंने जुर्रत को इकट्ठा किया और मैंने हौसला किया कि मैं इससे पूछूंगा कि भाई मुझे इस बात के अंदर जो भेद है वो बताओ कि तू इस कदर खूबसूरत है, तू इस कदर खुश लिबास है, बाल खूबसूरत है, कद खूबसूरत है, जिस्मानत खूबसूरत है, हर चीज ठीक है, मगर तू पाँव से नंगा क्यों है? पाँव से नंगा क्यों है? मैंने खुद को, मैं अपनी जुर्रत को इकट्ठा किया और वो शख्स आया, मेरे करीब से गुजरने लगा। मैंने उसे रोका, मैंने कहा भाई जी बात सुनिए। मैं सहमा हुआ था, डरा हुआ था कि मैं भाई गुस्सा ही ना कर जाए। मैंने कहा भाई जी एक बात बता दे, कई दिनों से मैं देख रहा हूं मगर मेरी जुर्रत नहीं हो रही कि मैं आपसे पूछूं, सिर्फ एक बात बता दीजिए। उसे कहा पूछो क्या? मैंने कहा भाई जी मैं देख रहा हूं कई दिनों से आप इसी तरह नंगे फिर रहे हैं, आप बड़ा खूबसूरत है और मैं बड़ा मुतासिर हूं, आपकी इतनी खूबसूरत है मैं मुतासिर हूं, सिर्फ एक बात बता दीजिए। उसने कहा पूछो क्या? मैंने कहा भाई जी आप नंगे क्यों फिरते हैं? थोड़ी देर के लिए वो खामोश हुआ, फिर गोया। उसने कहा मैंने खुदा से एक मन्नत मांगी, मैंने खुदा के हुजूर में एक मन्नत मांगी है कि मैं नंगे पांव फिरूंगा। मैंने कहा क्यों, कौन सी मन्नत है जिसके सबब से आपको नंगे पांव फिरना पड़ रहा है? थोड़ी देर के लिए वो हिचकिचाया, मगर उसके बाद उसने कहा कि मैंने खुदा से मन्नत मानी है कि मैं उस वक्त तक नंगे पांव फिरूंगा जब तक के इंडिया के हीरो मिथुन को ना देखे। Believe me, जब मैंने ये सुना तो मेरा दिल एकदम अंदर से मुझे झटका लगा कि मैं क्या भाई आप किसे देख रहे हैं? मैं मिथुन को देखना चाहता हूँ। उसकी ख्वाहिश, उसकी जुस्तजू जिसके लिए वो बाजारों में नंगा फिर रहा था। और फिर मुझे एकदम याद आया वो मिथुन भी चिट्टे कपड़े पहनता था, ये रोजाना सफेद कपड़े क्यों पहनता है? मुझे एकदम इसके पीछे राज ये है। उसने कहा मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा भाई जी वो पाकिस्तान में नहीं, वो इंडिया में रहता है, वो इंडिया में है, आप उसकी पाकिस्तान में तलाश कर रहे हैं। आज जब मैं इस बात को सोचता हूँ, जहां जहां जाता हूँ तो मैं इस बात को एक रेफरेंस बनाकर इस्तेमाल करता हूँ कि हम उस शख्स की तलाश कर रहे हैं जो महज इंडिया में, हमें उस शख्स की तलाश नहीं है जो पूरी कायनात में है, जो पूरी कायनात में मौजूद है, न सिर्फ इंडिया में, न सिर्फ पाकिस्तान में, न अमेरिका में, न लंदन में, बल्कि पूरी कायनात में जो मौजूद है वो यीशु मसीह है। हमें उसकी तलाश करनी चाहिए, हमें उसके पीछे जाना चाहिए, हमें उसके पीछे दौड़ना चाहिए। आज कलीसियां जोर लगाती हैं, खपती हैं, सिताइश करती हैं, बड़ा चीखती चलाती हैं लबों से, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, मगर किसी दिल के अंदर शायद ही कोई ऐसी तड़प हो जो यीशु मसीह को देखने के लिए दौड़ने लगे। आज बहुत से कम लोग हैं। याद रखिए वो जिसने सारी कायनात को पैदा किया खुद भी पैदाइश के अमल से गुजरता है। जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है वो खुद भी पैदाइश के अमल से गुजरकर मां से पैदा होकर कायनात की रिहाई और मखलसी के लिए काम करता है। बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत की है खुदा को देखने की।
हम क्रिसमस मना रहे हैं, हम चरनियाँ सजा रहे हैं, हम घरों को सजा रहे हैं, हम खानों की तैयारियां कर रहे हैं, हम कपड़ों की तैयारियां कर रहे हैं, हम स्टेजेस सजा रहे हैं, हम यतीमों, मस्कीनों, गरीबों और बेवाओं की दादरसी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। इट्स गुड, ये सब कुछ ठीक है, but how we can see him? मगर उसे कैसे देख सकते हैं? उसे कैसे देख सकते हैं? एक छोटी सी की है, जिस तरह पास्टर गफार साहब भी यहां पर कह रहे थे कि इस मजमे का मतलब रूहों को जीतना है, रूहों की निजात के लिए काम करना है। हम यहां पर आए कुछ लेकर जाए। एक छोटी सी की है खुदा को देखने की, बताऊं, सुनना चाहते हैं? छोटी सी की, बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा, छोटी सी की है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर आप मत्ती की इंजील मुकद्दसा को जानते हैं, पहाड़ी वास को जानते हैं, तो आपको याद आ जाएगा। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दसा, उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है, वो खुदा को क्या करेंगे? फिर बोलिए, मुबारक है वो जो पाक दिल है, वो खुदा को आज खुदा हमसे उतना ही दूर है जितनी पाकीज़गी हमसे दूर है। जितनी पाकीज़गी दूर है उतना खुदा दूर है। जैसे जैसे पाक होते चले जाएंगे, पाकीज़गी करीब आएगी, खुदा करीब आएगा। पाकीज़गी असल में खुदा को अपनी तरफ खींच लेने का नाम है। लिखा मुबारक है वो जो पाक दिल है, वो खुदा को देखेंगे, वो खुदा को। भाई जी बताएं। लिखा है मुबारक है वो जो पाक दिल है, वो खुदा को देखेंगे। पाकीज़गी इज ए की, ये कुंजी है खुदा को आप पर जाहिर करने की, खुदा की जात को हम पर खोल देने की। पाकीज़गी एक की है। कलीसियाँ आज भी, मस्जिदें आज भी, हैकलें आज भी नापाकी का शिकार हैं। मगर याद रखिए, अगर आज आप यीशु मसीह को देखना चाहते हैं तो पाकीज़गी को अपने अंदर जन्म दीजिए। लिखा है वो तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, वो दिखाना चाहता है, वो खुद को जाहिर करना चाहता है, वो जाहिर होना चाहता है। चंद बातों में इसे वाइंड अप करूंगा। एक ऐसे शख्स की कहानी जो यीशु मसीह को देखने की ख्वाहिश करता है। याद आ गया आपको? याद आ गया, शाबाश। ज़कई क्या करता है? ज़कई कूलर के पेड़ पर चढ़ता। आइए जरा पढ़िएगा जी, मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दसा, लूका की इंजील मुकद्दसा, उसका 19वां बाब, उसकी पहली 6 और 7 आयत का मुताला करें। जल्दी से पढ़ दीजिएगा। जी 19वां बाब। वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़कई नाम एक आदमी था, जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। महसूल लेने वालों का सरदार, भाई हनीफ वो क्या है? वो सिर्फ महसूल लेने वाला नहीं बल्कि उनका क्या है? सरदार है। जी आगे। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था। ये महसूल लेने वालों का सरदार, इसकी ख्वाहिश किसे देखना है? यीशु को। किसी सेलिब्रिटी को नहीं, किसी एक्टर को नहीं, किसी एक्ट्रेस को नहीं, दुनिया के किसी अजूबे को नहीं, बल्कि अजीब को। वो एक अजीब शख्स को देखना चाहता है। लिखा है कि वो यीशु को देखने की कोशिश करता था। क्या करता था? कोशिश करता था। जुबानी कलामी नहीं, सिर्फ महज जुस्तजू करने वाला नहीं, बल्कि क्या करता था? इसका मतलब है कोशिश करना एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है, एक मुसलसल अमल है जो वो कर रहा था, जो यीशु को देखने की कोशिश कर रहा था। लिखा है कि वो यीशु को देखने की कोशिश करता था। जी आगे। ये कौन सा है? फिर इम्तियाज कर रहा है कि यीशु कौन सा है। हर एक को यीशु नहीं समझता, महसूल लेने वाला है, नापाक है, फकीर
उठाते हैं, शागिर्द इस पर उंगलियां उठाते हैं, माशरा इस पर उंगलियां उठाता है, मगर इस महसूल लेने वाले के पास इम्तियाज और एक बेहतर ख्वाहिश मौजूद है। और वो ख्वाहिश क्या थी? यीशु को देखना। और इम्तियाज क्या था? हर शख्स को यीशु नहीं समझता। हर शख्स को लिखा है कि वो कौन सा था, ये कोशिश थी उसकी। वो आइडेंटिफाई कर रहा था कि हु इज द रियल मैन, असल आदमी कौन है, असल शख्स कौन है, असल यीशु कौन है। वैसे तो दुनिया में बहुत से यीशु होंगे, बहुत से नारे लगाते होंगे, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर दूंगा, मगर इस शख्स के पास, इस ज़कई के पास, इस नापाक शख्स के पास जिसे लोग नापाक कहते हैं, इसके पास एक बेहतर, एक अच्छी ख्वाहिश मौजूद है और इम्तियाज मौजूद है कि वो कौन सा है। जी आगे। लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। देखिए, सुनिए, इसका कद क्या था? छोटा था। फिर बोलिए, कद क्या था? छोटा था। ये छोटे कद का आदमी, इसका कद छोटा है मगर ख्वाहिश बड़ी है। साढ़े कद बड़े बड़े ने तो ख्वाहिशा छोटियां छोटियां। जैसे उस इंडियन शख्स को देखने की ख्वाहिश एक 6 फीट लंबा आदमी कर रहा है, उसका कद बड़ा, ख्वाहिश छोटी है। इसका कद छोटा है मगर ख्वाहिश बड़ी है। आमीन। इसकी तमन्ना बड़ी है, इसकी जुस्तजू बड़ी है और इसकी कोशिश बड़ी है, जो आज कलीसियाओं में नहीं है। आज बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं, जो ये समझते हैं कि शायद मेरा कद छोटा है, शायद मैं छोटे कद का हूँ, शायद मुझ में ये काबिलियत नहीं है, शायद मुझ में ये अहलियत नहीं है, मैं यीशु के करीब नहीं आ सकता, मैं उसकी हजूरी में नहीं आ सकता। मगर याद रखिए, जब तक आपकी जुस्तजू के साथ अमल शामिल नहीं है, आप उसे नहीं देख सकते। लिखा है कि उसका कद छोटा था। जी आगे। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर, बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था, क्योंकि वो उसी राह उसे मालूम है। उसकी जुस्तजू, उसका इम्तियाज, उसकी तहकीक उसे इस नहज पर ले आई कि वो समझ गया कि यीशु इस रास्ता से जाएगा। हाँ, भीड़ है, नहीं देखने देते तो कोई मामला नहीं है, मगर कोशिश, अमल इस कदर तेज है कि वो रास्ते तैयार कर रहा है, वो राहें बना रहा है, वो रास्ते तलाश कर रहा है, रास्ते बना रहा है, हमवार कर रहा है। भीड़ को नहीं देख रहा बल्कि तलाश कर रहा है कि कैसे देखा। आमीन। लिखा कि वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। आप सभी जानते इस कहानी को। मुझे किसी शख्स ने, मैं फक्कर में कलाम सुना रहा था, तो मुझे किसी ने कहा कि भाई जी, आपने ये कहा कि लिखा मुबारक है वो जो पाक दिल है वो खुदा को देखेगा, मगर ये तो एक नापाक शख्स है जो यीशु को देख रहा है। मैंने कहा, हाँ सुनिए, ज़कई सबको नापाक मालूम होता है, अलेक्जेंडर साहब ज़कई सबको नापाक मालूम होता है। वो ज़कई सरदार है महसूल लेने वालों का, वो धोखा देने वाला है, वो ज्यादा माल लेने वाला नजर आता है, मगर याद रखिए कि इन तमाम चीजों से बढ़कर उसके पास एक बेहतर ख्वाहिश मौजूद है। और वो किसे देखना है? यीशु को। ज़कई की कोशिशें, ज़कई की तमन्नाएं, ज़कई की काविशें, ज़कई की जुस्तजू, ज़कई के अंदर एक अमल शुरू कर रही थी। जब उसने दौड़ लगाई, वो इस तरफ दौड़ रहा था, वो उस तरफ दौड़ रहा था, जब वो दौड़े लगा रहा था, तो याद रखिए ज़कई के अंदर पाकीज़गी का अमल चल रहा था। यस, हालेलुया। एक प्योरिफिकेशन का अमल चल रहा था। ऐसे उसने नहीं देख लिया, और एवं यीशु मसीह ने भी नहीं देखा। यस। उस शख्स में खास बात थी जो सब में नहीं थी। यूं तो भीड़ बहुत थी, लोग बहुत थे, मगर यीशु ने ऊपर निगाह करके देखा। लिखा जी, पढ़िएगा। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर, जब यीशु उस जगह जहां पर ज़कई गूलर के पेड़ पर चढ़ा था, यीशु उस जगह पहुंचा जी, तो ऊपर निगाह करके, तो ऊपर निगाह करके, क्यों? सुनिएगा, जो सबसे ऊपर है वो खुदा है, और वो खुदा जो सबसे ऊपर है मुजस्सम होकर बेटे की शक्ल में जब दुनिया पर आया, दुनिया में आया,
पाकीज़गी को। आमीन। किसे देख रहे हैं? पाकीज़गी को। आपकी पाकीज़गी खुदावंद यीशु और खुदा की आंखों को आपकी तरफ खींच लेती है। Praise God. Hallelujah. वो खुदा आपकी तरफ मुखातिब होता है, यानी ये कैरिज्मा है, ये कशिश है, ये मैग्नेटिक फोर्स है पाकीज़गी कि खुदा आपकी तरफ खींचा चलाता है। आप पाकीज़गी पैदा करें, आप ईमान के साथ उसके बेटा होने पर, उसके तजस्सुम पर इत्तेकाद करें, तो खुदा आपकी तरफ खींचता चलाएगा। आमीन आमीन आमीन। लिखा है कि उसने उस जगह पहुंचकर ऊपर निगाह की और कहा ज़क्कई नीचे उतरा, कहा जा नीचे आ, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। बहुत सी भीड़ में नहीं, बहुत से फकीर और फरीसियों के घरों में नहीं, बल्कि उस शख्स के घर में जिसके अंदर पाकीज़गी का अमल चल रहा था, जो यीशु मसीह को देखने की ख्वाहिश कर रहा था, जो जानना चाहता था कि कौन है। और बताऊं उसका सबूत क्या है उसकी पाकीज़गी का, कि जड़ा अमल उनके अंदर चल रहा था। बड़ी खूबसूरत बात है, ज़क्कई की पाकीज़गी का इज़हार, जिसने यीशु को पा लिया, उसका मजहर क्या था? पढ़िएगा जी आगे। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ज़क्कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। ज़क्कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले वो गया। जल्द उतर कर खुशी से उसे अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब एक दूसरे से बुड़बुड़ा कर कहने लगे। जब लोगों ने, यानी उस जमात में जितने भी लोग थे, ये देखा तो बुड़बुड़ा कर एक दूसरे से कहने लगे, जी वो तो एक गुनाहगार शख्स के हाथ जा उतरा। लोग क्या समझ रहे हैं? गुनाहगार। वो तो एक गुनाहगार के शख्स जा उतरा। जी आगे। और ज़क्कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ये ज़क्कई की पाकीज़गी का इज़हार है, ये अलामत है, ये ज़क्कई की पाकीज़गी का खुला ऐलान है कि ज़क्कई ने कहा, जी आगे, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ। गरीबों को देता हूँ। जी और आगे। अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है, अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया है, तो उसको चौगुना अता करता हूँ। उसे उसका चौगुना अदा करता हूँ। जी आगे। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई यीशु ने है। कहा, आज इस घर में क्या आई है? निजात आई क्या है। आई है? निजात आई है। आज इस घर में आई है निजात। वो निजात जो जल्दी में आई, वो निजात जो दुनिया में आई, ज़क्कई के घर में गई। मगर कब और कैसे मुमकिन हुआ? ज़क्कई की पाकीज़गी का इज़हार कहां से हुआ? लिखा है कि उसने अपना आधा माल गरीबों को दे दिया। आज कितने हैं जो दूसरों को लूट कर तौबा करने के बाद उन्हें लौटाते हैं? कितने लोग हैं जो लूटने के बाद लौटाते हैं? जब उन्हें निजात मिलती है, जब वो इकरार करते हैं कि यीशु आज जो चरनी में आया मेरे घर आ गया है, लो जी आज मैं भी अपना माल वापस देना, मैंने किसी से 10 लिए हैं, मैं उसे 20 दूंगा। ये पाकीज़गी का मजहर था, ये पाकीज़गी का ऐलान था, ये उसकी रास्तबाजी की अलामत थी कि ज़क्कई ने वो सब वापस लौटा दिया जो उसने नाजायज लिया था, बल्कि चौगुना वापस लौटाया। आज कितने हैं जो उसे देखना चाहते हैं? Praise the Lord. कितने हैं जो उसे देखना चाहते हैं? And the key to see him, उसे देखने की कुंजी क्या है? पाकीज़गी, पाक दिल होना। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो पाक दिल है, वो खुदा को देखेंगे। आइए खुद को इस अमल के लिए तैयार करें। कलीसिया आज यीशु मसीह जिसकी सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में की जा रही है, जो पूरी कायनात का खालिक और पैदा करने वाला है, वो इसलिए पैदा हुआ कि हम पैदाइश के अमल से फिर गुजरे। यस, हालेलुया। हम उस रास्तबाजी को पूरा करें जो हमें खुदा के नजदीक ले आती है। आपने कहा कि हम खुदावंद यीशु को देखना चाहते हैं, तो वाइंडिंग पैसेजेस में हम सब एतराज तो कर रहे हैं। अगर खालिक, मालिक, राज़िक
पैदाइश के अमल से गुजरता है तो वो हमें फिर पैदा होने के कहता है। उसे कहने को दिमाग तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है, फिर तू खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता है। पाकीज़गी के अमल को दावत दीजिए तो फिर मुमकिन होगा कि हम उसको रूबरू देखें जो बादलों पर आएगा, जो चरनी में आया, जिसे मजूसियों ने देखा, जिन्हें चरवाहों ने देखा, जिसे फरिश्तों ने सिजदे किए। आइए वो आपकी पाकीज़गी के सिजदे चाहता है। वो चाहता है कि हम पाक बने जैसे हमारा बुलाने वाला पाक है। आज क्रिसमस के इन उयाम में इस बात का अहद करें, इन बातों को ज़हन में रखें और इकरार करें कि हम इन दिनों को महज एक त्योहार नहीं समझेंगे, हम महज एक ईद नहीं समझेंगे, बल्कि तब्दीली का दिन समझेंगे, तब्दीली का महीना समझेंगे, खुदा यीशु को करीब से देखने की जुस्तजू करेंगे। आइए अपने सर को झुकाइए।